Hello students. In previous video we have revised lesson number 5 and its exercise. Now today we will revise the question answers of this lesson. So the first one is state the two main categories of diseases. So there are two main categories of diseases. What are those? That is non-communicable diseases and communicable diseases. So two main categories of diseases are communicable and non-communicable diseases. Write two symptoms of disease beriberi. So I have told you to learn that table जो हमने पीछे डिजीज का किया है, their symptoms, causes, वो हमने याद कर रहे थे. I hope all of you have learned it because अगर आप वो लर्न कर लेते हैं then it becomes very easy to answer the questions. So two symptoms of disease beriberi. So symptoms are extreme weakness, weakness बहुत ज़्यादा हो जाती है, and paralysis of body parts. So these are two symptoms of disease beriberi. That is extreme weakness and paralysis of body part. Paralysis of body part means कोई body का part है वो properly function नहीं कर पाता. That is paralysis. Next is name any two diseases that can spread through the bite of mosquito. This is a very easy question. So two diseases ये हम लोग ने fourth में भी किया है. So that is malaria and dengue. So these are the two diseases that spread through the bite of mosquitoes. A girl finds it difficult to see in dim light. Dim light means जैसे थोड़ी कम लाइट होती है उसमें उसको नजर नहीं आता. And has dry and scaly skin. Name the disease she might be suffering from. So ये again this is a symptom. तो ये आपने डिजीज बतानी है कौन सी डिजीज हो सकती है. सो इट कैन बी जिसमें हमको डिम लाइट में नहीं नजर आता है उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. सो दिस इज द डिजीज एंड ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. Now, why should we not allow water to stagnate around our homes? Again, simple question. This question we have already done in class 4th. कि stagnant water से क्या होता है हमारे घर के अगर आसपास होगा. So we know that stagnant water is a breeding place for mosquitoes. जहाँ पर stagnant means रुका हुआ पानी, खड़ा पानी. जहाँ पर रुका हुआ पानी होगा वहाँ पर क्या होता है मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, पैदा होते हैं. एंड यू नो कि मॉस्किटोज क्या कर सकते हैं. दे कैन स्प्रेड द डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 3. सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर होम्स. नेक्स्ट इज हाउ डज कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी अफेक्ट आवर बॉडी. Again, the deficiency of calcium is phosphorus and how it can affect our body. So calcium as phosphorus is very important for our teeth and bones. So teeth becomes weak, lose their shine and whiteness. So calcium and phosphorus हमारे किस काम आता है bones and teeth के लिए. उससे बनते हैं. सो अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस ही कम हो जाएंगे बॉडी में व्हाट विल हैपन. टीथ बिकम्स वीक, लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस. सेकेंडली बोन्स ऑल्सो बिकम वीक. बोन्स एंड टीथ दोनों ही होते हैं तो दोनों वीक हो जाएंगे. एंड बोन्स ऑल्सो बिकम्स वीक, सॉफ्ट एंड फ्रेगाइल. सॉफ्ट भी हो जाएगी और फ्रेगाइल भी हो जाएगी. सो दीज आर द effect of calcium phosphorus deficiency. So it is related to teeth and bones. So ये आपने learn रखनी है. Suggest some measures that can help us to prevent the occurrence of deficiency disease. So I have told you deficiency disease के cause क्या होता है. cause होता है कि किसी nutrient की कमी हो जाए हमारी डाइट में, right? तो इसका opposite अगर हम कर लें, इसको नहीं होने देना है तो क्या है. किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो अगर हम बैलेंस डाइट खा लेते हैं
अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमको ये डिजीज नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो हमको ये डिजीज नहीं लगेगी। सो क्या हम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में होते ही हैं सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडली, वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। सो दैट मीन्स टाइमली खाना खाना चाहिए, प्रॉपरली आपका जो है वो वाटर लेना चाहिए। सो गुड फूड प्रैक्टिसेस आपकी होनी चाहिए। थर्डली, जनरली जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है डेफिशिएंसी डिजीज, वैसे तो बड़ों को भी होती है, पर जो छोटे बच्चे होते हैं प्रॉपर डाइट नहीं लेते। सो चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पॉरेज एट्सेट्रा, सो दैट उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। So these are the some measures that can help us to prevent the occurrence of deficiency diseases. The most important thing is take a balanced diet. How can we prevent the spread of germs from a sick person to a healthy person? So you know, जो communicable disease होती है वो हमारी सिक पर्सन से अदर पर्सन को लग सकती है। एंड उसके जो हमने कॉजेज भी किए थे, ठीक है, जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं। सो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग इज दैट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं और क्लोथ्स हैं वो सारे डिसइंफेक्टेंट करने हैं। दैट मीन्स उसको प्रॉपरली वॉश करना है और उसमें उसके जो इन्फेक्शन है वो सारा हमें साफ करना है। दैट इज ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। लाइक जिसमें वो खाता है, वो जिसमें जैसे वो क्लोथ्स यूज करता है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेड। सेकेंडली, वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। तो जब भी छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें अपना माउथ कवर करना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट कम्युनिकेबल डिजीज के जो जर्म्स होते हैं दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, सॉरी एयर ऑल्सो। सो एयर से जो हमारा कोल्ड है, कॉमन जो फ्लू है, वो सारा क्या होता है, एयर से फैलता है। तो जब हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं तो उससे बहुत सारे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं माउथ से निकलते हैं जो कि एयर से स्प्रेड होकर दूसरे पर्सन तक पहुंच सकते हैं। सो वी शुड कवर द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। एंड सेकेंडली, द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होगी तो हमारे जो है जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, और जिससे कि हमारा जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी नहीं फैलेगी। क्योंकि फ्लीज, इसके जो एजेंट्स होते हैं, लिविंग एजेंट्स क्या होते हैं हमारे, मॉस्किटोज, फ्लीज, ये सारे इसके लिविंग एजेंट्स हैं। तो अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन एंड हाइजीनिक होगी तो ये चीज़ें भी नहीं होगी। So these are some preventive measures that we can take so that the germs will not spread from sick person to a healthy person. Next is Isha was suffering from chickenpox. You know about chickenpox. Her teacher advised her not to come to school till she has recovered completely. Why? So you know that chickenpox कैसी डिजीज है, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, सो इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। सो ईशा को वो डिजीज हुई है, इफ शी कम टू स्कूल तो क्या होगा, जो बाकी चिल्ड्रन हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वो डिजीज हो सकती है। सो दैट्स वाई उसकी जो टीचर है उसने उसको एडवाइज किया है कि नॉट टू कम टू स्कूल, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो स्कूल ना आए, सो दैट जो दूसरे चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी सेफ रहें, उनको डिजीज ना हो, बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज विच
can get transmit to other students also. And why are deficiency diseases called non-communicable diseases? So, right, what is non-communicable disease? That cannot transmit or spread from one person to another. So इसीलिए हम डेफिशिएंसी डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, क्योंकि वो वन पर्सन से अदर पर्सन में को ट्रांसमिट और स्प्रेड नहीं होती. वो जिसको होती है उसमें ही रहती है और वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो you can write the answers in your own words also, right? जो हमने अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, प्रॉपरली आपने लेसन को समझा हुआ है, तो यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज. बट द थिंग इज कि वो प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए आंसर, तो आपका आंसर करेक्ट होगा. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज lesson number 6, that is spoilage and wastage of food and food preservation. So there are 4 lessons that will come in the exam, that is 5, 6, 7 and 8, and I hope you also get the syllabus. So we will revise all these lessons and learn the exercises of all the lessons properly, and also the question answers. Thank you.